الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن مجید، اس کی باتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ متقی کون ہیں؟ جو کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ دیے ان میں خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی جمعرات کو وضو کے متعلق، تیمم کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں۔ ایک دو چھوٹی باتیں ہیں، ان کے متعلق اشکال اگر ہے تو اس کو رفع کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے اس سے پہلے ہمیشہ فتویٰ دیا تھا کہ عورت جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی۔ یہ شیخ ابن باز، شیخ صالح عثیمین رحمہم اللہ کا فتویٰ ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس لیے میں نے جواز کا فتویٰ پچھلی مرتبہ دیا۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ مرد یا عورت نہاتے وقت بغیر کپڑے کے ننگے نہا سکتے ہیں کیا؟ نہا سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی غلط سوچ نہ آئے، کوئی شیطانی کام نہ کریں۔ نوجوانوں کو حمام بند رہے گا تو غلط کام بھی کریں گے، ہاتھوں کے استعمال سے منی نکالیں گے۔ اگر ایسا اندیشہ نہیں ہے تو ننگے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مائیں اپنے بچے کو پیخانہ کرنے کے بعد دھلاتی ہیں، ماں ہو بہن ہو کوئی بھی ہو۔ اب یہ کہ جو آدمی شرمگاہ کو چھوئے اس کے لیے وضو ضروری ہے، وضو ٹوٹ جاتا تو کیا ماں کا وضو بھی یا بچی کو جو پاخانہ دھلاتے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ حدیث میں دو باتیں آئی ہیں، من مسا فرجہ فلیتوضأ، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث آئی، من مس الفرجہ، جو شرمگاہ کو چھوئے اپنی یا کسی کی بھی تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اس لیے احتیاط کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ مائیں اگر اپنے بچے کو استنجا کراتی ہیں، دھلاتی ہیں تو ان کو وضو کر لینا بہتر ہے۔ یہی ہم کو سمجھ میں آیا، واللہ اعلم بالصواب۔ صلاۃ، صلاۃ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کو نماز بولتے ہیں۔ صلاۃ کو نماز بول سکتے کیا؟ کئی علماء نے کہا نہیں، صلاۃ کو صلاۃ ہی بولنا۔ نماز اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا صلاۃ کو صلاۃ بولنا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بولنا، حج کو حج بولنا، صوم کو صوم بولنا، روزہ نماز نہیں بولنا، ایسے کچھ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ نماز، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت ساری عبادتیں فرض کی ہیں۔ پورے قرآن کے اندر کتنے احکام ہمارے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ایک عبادت جس کا تحفہ دینا ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو اللہ نے وہاں تحفہ دیا نماز کو۔ 50 نماز فرض کیے، کم کرتے کرتے 5 نماز، لیکن ثواب 50 نماز کا ملے گا، یہ معلوم ہوا۔ تو آسمان میں جا کر
अल्लाह के रसूल नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। इसीलिए उर्दू में कहते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, सलात जो है, नमाज जो है, वो मोमिनों को मेराज की रात में वो तोहफ़ा मिला। कितनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह ताला ने उसको आसमान पर बुलाकर दिया। तो नमाज का मतलब, सलात का मतलब होता है दुआ। दुआ उसका मतलब होता है लुग़त में, डिक्शनरी में। शरीयत में किसको बोलते हैं? सलात। ये ख़ास इबादत जिसके अंदर कुछ हरकत होती हैं और कुछ ज़बानी बोलना पड़ता है, और उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है। उस इबादत को मिला के सलात या नमाज कहते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान मजीद में। नमाज, सलात, कानू यक़ूमून क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, नमाज के मुतल्लिक़ तलाश करें 700 जगह तकरीबन नमाज का ज़िक्र है। 700 जगह, एक दो जगह नहीं, 700 जगह है नमाज के ताल्लुक़ से आयात। बहुत बड़ी इबादत है, बड़ा सवाब भी है इसका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलजुमातु इलल जुमाती वस्सलावातुल खम्सु कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना इदज्तुनिबतिल कबाइर। एक जुम्मा पढ़े, दूसरा जुमे, इस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई वो पूरी माफ़ कर देता अल्लाह। गुज़िश्ता मरते हम लोग जुमा पढ़े, ये 6-7 दिन में कितनी गलतियाँ हो गई रहेंगी, कुछ छोटे मोटे गुनाह हो गए होंगे। अब कल जुमा पढ़ेंगे ना, ये पूरे एक हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाते। उसी तरह एक नमाज से दूसरी नमाज, फजर पढ़े, ज़ोहर पढ़े, 6 घंटे 7 घंटे का फ़र्क हुआ। ये 6-7 घंटे में कुछ भी छोटे मोटे गुनाह हुए हैं, ये सब भी माफ़ हो जाते। बड़ी फजीलत है नमाज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जी, अगर तुम्हारे दरवाज़े पर नहर हो, पानी की नहर बहती हो, एक आदमी एक दिन में 5 मरतबे नहाएगा, उसके बदन पर मैल रहेगी? कहा नहीं, वैसे ही 5 नमाजें हैं जी। 5 नमाजें इंसान जब पढ़ता है तो गुनाह का मैल नहीं रहता, छोटे मोटे गुनाह का मैल ख़त्म हो जाता है। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नमाज बहुत बड़ी इबादत है। कितनी इबादत है? एक तो फ़र्ज़ नमाज है जी, उसके बाद 10 या 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा अल्लाह के रसूल हमेशा पढ़ते थे। जब मदीने में होते थे तो सफ़र में जाते फजर की सुन्नत पढ़ते, बाकी ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद नहीं पढ़ते। इसको बोलते हैं सुन्नत मुअक्कदा। एक दिन में 10 या 12 रकात हैं। फजर से पहले 2 रकात। फजर से पहले आम तौर पर ऐसा होता है, देर से आके लोग यहाँ एक नमाज होते रहती है, वो एक नमाज पढ़ते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इज़ा उक़ीमतिस सलातो फ़ला सलाता इल्ला अल्लती उक़ीमत। जब इक़ामत कहकर नमाज शुरू हो गई, अब उसके सिवा कोई नमाज आप नहीं पढ़ सकते। एक रकात पढ़ लिए, इक़ामत हो गई, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया, आपको नमाज छोड़ देना, छोड़ के आके जमात में शामिल हो जाना, सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं। छोड़ दिए भाई, फ़र्ज़ नमाज शुरू हो गई, भाई जाना चाहिए ना, दिल में सोच के फ़ौरन आके खड़े हो गए। ऐसा है तो इसका इतना बड़ा ख्याल करना चाहिए। तो ये सुन्नत नमाज़ें दिन में 12 नहीं तो 10। फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 2, ज़ोहर के बाद 2,
मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2, नहीं तो ज़ोहर से पहले 4, 12 हो गए, 2 2 2 2 2 पढ़े तो 10 हुए, 1। दूसरी नफिल नमाज, नफिल नमाज सुन्नत से कम दर्जा उसका, सुन्नत का ज़्यादा सवाब है, नफिल नमाज का कम है सवाब। उसमें पूरी नमाजें आती हैं। मसलन कोई आदमी बैठा रहा, फजर की नमाज़ पढ़ के ज़िक्र अस्कार करता रहा, अल्लाह से दुआ करता रहा, सूरज निकल गया, उसके बाद 10 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा तो उसको एक उम्र का सवाब मिलेगा। इस हदीस को बहुत से उलमा ने सही करार दिया है। इतनी बड़ी फजीलत है नमाज की। उसी तरह चाश्त की नमाज, चाश्त की नमाज का मतलब यह होता है जैसे सूरज निकल के ज़रा गर्मी पैदा हो गई, ज़रा गर्मी जैसे 10 साढ़े 10 बजे, उसको बोलते हैं चाश्त की नमाज, दुहा की नमाज। वो कितने रकात है? 2 रकात है। अगर चाहे तो 2 रकात पढ़िए, और अगर चाहे तो 4 पढ़िए, चाहे तो 6 पढ़िए, चाहे तो 8 पढ़िए। इसलिए कि तहज्जुद 8 रकात है रात की, तो दिन की नमाज भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है। इसके पढ़ने से क्या सवाब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी जब सोकर उठता है 360 सदका करना, 360 सदका करना। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ पाँव सबको सलामत रखा ना, शुक्रिया अदा करो जी। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमारे पास इतनी कहाँ हैसियत है? कहा 2 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लो, पूरा सवाब मिल जाएगा। यानी इसका कफ़ारा, अल्लाह ने जो हमारी जान बचाई, जोड़ों को बचाया, बीमारियों से बचाया, उसके सवाब हो, उसका बदला हो जाएगा। ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया। उसी तरह मगरिब से पहले 2 रकात नफिल पढ़ सकते, सुन्नत नहीं, वो नफिल। सुन्नत तो हमेशा पढ़ते, नफिल हमेशा नहीं पढ़ना, कभी कभी छोड़ देना, कभी कभी छोड़ देना। उसी तरह तहज्जुद की नमाज भी नफिल नमाज है, वो भी अल्लाह के रसूल के लिए ज़रूरी थी, हमारे लिए नफिल नमाज है। इसका टाइम तहज्जुद का कब शुरू होता? इशा की नमाज़ पढ़ के 2 रकात आप सुन्नत पढ़ लिए इशा की। अब उसके बाद चाहे तो 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर 2 रकात, फिर उसके बाद वितर पढ़ लिए। ये भी तहज्जुद की नमाज। रमज़ान में उसको हम तरावी कहते हैं। रमज़ान में बीच रात में उठ के नहीं पढ़ते ना, कब पढ़ते हैं? पढ़ लेते हैं इशा के बाद तरावी, वो भी नफिल नमाज है, उसका भी सवाब बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी रमज़ान में तरावी मुकम्मल पढ़ेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो भी नफिल नमाज है। कितनी नमाजें हैं जी?